اس संदर्भ में आज का कार्यक्रम विशेष महत्व रखता है. हमारे बीच में हमारे संगठन के महासचिव वेणुगोपाल जी और जम्मू और कश्मीर के प्रभारी रजनी पाटिल जी हैं, जो अवगत कराएंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विशेष महत्व. केसी वेणुगोपाल जी. धन्यवाद. गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी. आज बहुत खुशी दिन है. Just before the Bharat Jodo Yatra, our stalwarts of Jammu and Kashmir Congress, who left us for 2 months due to some misunderstanding, has come back to the home. Some of our relatives leaving the house, some misunderstanding, and coming back to the home with such बहुत खुशी बात है. We are really happy today. Jairamji rightly pointed out that Bharat Jodo Yatra is on the path of culmination. January 30th is the most important day for this country. The Yatra will start from September 7th onwards from Kanyakumari. It is going to culminate on 30th January at Jammu and Kashmir. Not only Congress people, the people from all like-minded political parties are joining us in Jammu and Kashmir, like Farooq Abdullah ji, Labuba Mufti ji. Those people are all joining us. This yatra become a big movement in this country. Therefore, if anybody have a Congress mind in its world, but cannot sit ideally. That is why all these leaders who left us 2 months before took a strong decision to come back in the domination of Indian National Congress and to walk with Rahul Gandhi and to make the Bharat Jodo Yatra a great program in Jammu and Kashmir. I would like to welcome Sri Tarajan ji, former Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir, Mirzada Muhammad Said, former PCC President and 3-time Minister of Jammu and Kashmir, Thakur Balwant Singh, former MLA, Muhammad Mujafir Kare, Muhinder Badwa, Kushwan Dwagra, Vinod Sharma, Narendra Sharma, Naresh Sharma, Amrish Magrota, Subhash Bhagat, Santosh Manhas, Badrinath Sharma, Varun Magotra, Anuradha Sharma, Vijay Targotra, Srimati Chandra Prabha Sharma. 17 big leaders. These are all. I will request Rajini ji to go into the details of the profile. But you can see that ex-Deputy Chief Minister, ex-PCC President, all other ex-MLAs, those who went 2 months before from our party are coming back. This is only a beginning. Not only these people. I think when Yatra is entering into Jammu and Kashmir, all people, those who are believing in Congress ideology or believing United India is the need of the hour, will join this Yatra. Therefore, on behalf of All India Congress Committee and on behalf of Honorable Congress President, I sincerely welcome all of these leaders. These leaders, I think they are taken a leave for 2 months from the party and now
یہ پارٹی نہیں چھوڑے تھے, یہ چھٹی کے لیے بات اور یہ واپس چھٹی کے بعد واپس آئے. تو میں ابھی رجنی پٹیل جی سے گزارش کروں گا کہ اصل میں 19 لوگ واپس آئے چھٹی کے بعد, اور آج 17 لوگ یہاں موجود ہیں. 2 آ نہیں پائے پر 19 لوگ, اور یہ پہلا چرن ہے, اور بھی آنے والے ہیں. میں رجنی جی سے گزارش کروں گا کہ ان کا پریچے کرائیے اور اس پریس کانفرنس کا وشیش مہتو کے بارے میں کچھ اور جانکاری آپ. نمسکار. راہل جی کا جو جن سیلاب نکلا ہوا ہے, اس جن سیلاب میں شامل ہونے کے لیے ڈی اے پی کے لیڈرس ہمارے ساتھ شامل ہوئے, اور صبح کا بلا شام کو گھر آتا ہے تو ان کو بلا نہیں کہتے. اس سے سب کو ریئلائز ہوا ہے کہ ہماری پارٹی, ہماری پہچان کانگریس ہی ہے, اس لیے کانگریس لوگوں نے جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تارا چند جی ہمارے فارورڈ ڈپٹی سی ایم ہیں, جو بھی تھے, لیڈر آف سی اے پی بھی تھے, اور اسٹیٹ جب ڈی اے پی تھا تو اس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے, وائس چیئرمین. پیرزادہ محمد سعید فارورڈ پی سی سی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں, 3 ٹائم کے منتری رہ چکے ہیں, اور ڈی اے پی کے ایکس وائس چیئرمین ہیں. ٹھاکر بلوان سنگھ فارورڈ ایم ایل اے ہیں, اور وہ ایک جنرل سیکرٹری ڈی اے پی کے ہیں. محمد مظفر پریش جو فارورڈ ایم ایل سی اور سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں, ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے ڈی اے پی کے. موہندر بھاردواج جی جو ہمارے سینئر ایڈوکیٹ ہیں, اور 3 ٹائم پریزیڈنٹ بار ایسوسیشن کی جموں کشمیر اور لداخ کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں. بھوشن ڈوگرا جی فارورڈ وائس چیئرمین, وہ شیڈول کاسٹ ایڈوائزری بورڈ جموں کشمیر گورنمنٹ منسٹر انسٹیٹیوشن کا تھا. श्री विनोद शर्मा जी एक्स चेयरमैन कांग्रेस सेवादल, एक्स जनरल सेक्रेटरी पीसीसी, एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डीएपी. नरेंद्र शर्मा एक्स जनरल सेक्रेटरी पीसीसी, एक्स जनरल सेक्रेटरी डीएपी. नरेश शर्मा 2 टाइम्स एक्स चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ जो है, जिससे राहुल जी की यात्रा आएगी शुरू होगी, वहाँ उस सिटी के 2 बार म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं. अमरीश मल्होत्रा एक्स चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल कटरा. वैष्णो देवी का नाम आपने सुना होगा, कटरा जाना पड़ता है, तो कटरा के ये म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन थे. सुभाष भगत एक्स प्रेसिडेंट पीसीसी सांबा, एक्स जनरल सेक्रेटरी डीएपी. संतोष मनहस सेक्रेटरी डीएपी. बद्रीनाथ शर्मा एक्स फाउंडर मेंबर ऑफ डीएपी. वरुण बागोत्रा जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूथ कांग्रेस एंड सीनियर यूथ लीडर डीएपी. अनुराधा शर्मा महिला, उनके डीएपी की महिला कांग्रेस की डीएपी की महिला की लीडर. विजय दरगोट्रा ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन हीरानगर. श्रीमती चंद्र प्रभा शर्मा महिला लीडर. तो ये सब लोग आज हमारे पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं. जैसे कि हमारे वेणुगोपाल सर ने कहा, ये छुट्टी के लिए गए थे, 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद वापस आ गए हैं. उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. मुझे पूरी आशा है जिस तरह से वातावरण, क्योंकि मैं हर 4 दिन के बाद जाती हूँ जम्मू कश्मीर, एकदम वहाँ पे माहौल चेंज हुआ है, क्योंकि वहाँ उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है. जैसे हमारे लोगों ने संपर्क किया तो फारूक अब्दुल्ला साहब भी ज्वाइन करेंगे यात्रा को, सभी उन्होंने यूपी में ज्वाइन करेंगे. उमर अब्दुल्ला भी श्रीनगर में उनको वेलकम करेंगे. हमारे अलीगामी जी पार्टी की, वो भी करेंगे. मुफ्ती जी ने भी सम्मति दी है और बहुत आनंद से बोला है कि हम सम्मिलित होंगे. मुजफ्फर शाह जो है अवामी नेशनल लीग के, वो भी शामिल होंगे. लाइक माइंडेड सभी लोग इसमें शामिल होंगे. और आप सोच भी नहीं सकते, शुरुआत वहाँ से हुई, उस तरह से शानदार प्रोग्राम हमारा श्रीनगर में हो जाएगा, और श्रीनगर का प्रोग्राम पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा. इतना ही मैं आपको आज कहकर आपको सबको सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होकर वहाँ पे आ जाइए. अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे बीच में जो 2 बड़े वरिष्ठ नेता हैं जम्मू कश्मीर के, जो हमारे साथी रह चुके हैं, ताराचंद जी और पीरजादा मोहम्मद सैयद जी. ताराचंद जी. आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार. श्री वेणुगोपाल जी ने और मैडम रजनी जी ने तफसीलन आपको सारा बता दिया. जहाँ तक
हमारा तल्लक है, जितने भी साथी हमारे बैठे हैं, हमारी पूरी उम्र जो है वो कांग्रेस में ही बीती है, हमने कांग्रेस के लिए ही काम किया है। बीच में हालात कुछ ऐसे बने कि जल्दबाजी में जज्बाती होके हमने कोई गलत कदम उठा लिया। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा गलत कदम हमने उठाया। जिस पार्टी ने ताराचंद जैसे एक गरीब आदमी को, गांव के रहने वाले को टिकट दिया, एमएलए बना, सीएलपी लीडर बनाया, एक पहचान दी। दूसरी दफा मैं जीता तो 6 साल स्पीकर जम्मू कश्मीर असेंबली का रहा, ये भी पार्टी की दी हुई पहचान थी। श्रीमती मैडम सोनिया जी ने मुझे खुद बुला के कहा था कि मैं आपको स्पीकर बना रही हूँ, और 6 साल के लिए मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, ये भी कांग्रेस की देन थी। मैं समझता हूँ कि हम सबकी जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा ब्लंडर हमसे हुआ, सबसे बड़ी भूल हुई, हमने जज्बात में आके, किसी के दोस्ती में आके गलत कदम उठा लिया, जिस वजह से कि हमें और हमारी पार्टी को नुकसान है। अगर पार्टी का नुकसान है तो हम सबका नुकसान है, कि हम सबको नुकसान उठाना पड़ा। तो आज हम फिर वापस आए हैं। हम पार्टी के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। श्री राहुल गांधी जी के, जनाब खड़गे साहब जो ऑनरेबल हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनके मशहूर हैं। मैडम सोनिया जी के मशहूर हैं, जिन्होंने हमें फिर वापस शामिल होने की इजाज़त दे दी। श्री वेणुगोपाल जी, मैडम जी, इनके भी हम मशहूर हैं कि इन्होंने साथ शामिल होकर हमें फिर से पार्टी में शामिल करने का मौका दिया, होने का मौका दिया। ये ज़्यादा मोहतरम जनरल सेक्रेटरी साहिबान, मैं तमाम मीडिया का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ लाया और हमारी वो एक ला रहे हैं। आप सुनेंगे। जैसे आपने सुना कि मैं 50 साल कांग्रेस में रहा हूँ, 50 साल यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, और 4 दफा मैं मिनिस्टर रहा। पूरी जिंदगी कांग्रेस में बिताई और मुझसे भूल हो गई कि मैं जज्बात में आ गया और 2 महीने के लिए जैसे वालों को ये कहा गया है कि ये देव था, मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ और मैं माफी मांगता हूँ कश्मीर के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को और अपनी पार्टी को। और मैं तकरीबन ये 2 महीने मैंने नींद नहीं किया और ऐसा मुझे दबाव था, न सिर्फ लोगों का बल्कि अपने परिवार का भी, क्योंकि एक वालहाना मोहब्बत है गांधी फैमिली का और जम्मू कश्मीर के लोगों का, और आज भी प्यार करते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोग गांधी फैमिली को। जिस तरह से उन्होंने हमारे लोगों के साथ हमदर्दी और तरक्की के राह पर गामजन किया, वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोग अभी भूल नहीं पाए। जरूरत है इस बात की कि पूरे मुल्क में और जम्मू कश्मीर में, जहाँ आजकल आतंकवाद कर रहा है और कोई कमी नहीं आई पिछले 8 साल से, मैं समझता हूँ कि आतंकवाद बढ़ गया है, कमी नहीं आई है। ये सेकुलरिज्म, मुल्क में सेकुलरिज्म
देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब बहुत ही सीनियर कांग्रेस के लीडर रहे और काम करने का तजर्बा भी उनका अच्छा रहा है। अब ना जाने कि हाई लेवल की बात है, कहाँ क्या कमी हुई, क्यों उन्होंने पार्टी छोड़ी। हमारा उनके साथ जो रिश्ता था लगभग पिछले 40 साल से रहा, एज दोस्त, और हम सीनियर होने के नाते उनको लीडर भी मानते थे। आज उन्होंने किन कारणों से पार्टी छोड़ी वो वही बता सकते हैं क्यों छोड़नी पड़ी, क्योंकि हमें तो ये मालूम नहीं। दूसरा जो आपने पूछा है कि हमें क्यों छोड़नी पड़ी, क्योंकि दोस्ती की वजह से हम जज्बात में आ गए कि आज ये अकेले पड़ गए हैं, हम इनको साथ देना चाहिए। जल्दबाजी में हमने फैसला ले लिया और अब जब वो जज्बात ठंडे हुए तो हमें याद आया कि नहीं, जिस पार्टी ने हमें सब कुछ दिया है, जिस पार्टी ने इस देश को बनाया है, उस पार्टी के लिए ही हमें काम करना चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान को और खासकर जम्मू कश्मीर में जो सेकुलर फोर्सेस, उनको मजबूत करने की जरूरत है, उनको यूनाइट होने की जरूरत है। जब हमें लगा कि जहां कुछ गड़बड़ लग रहा है, भूल भुलाइयों में डाल के गलत जगह ले जाने की कोशिश की जा रही है, सेकुलर फोर्सेस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो हम फिर अपने घर वापस आ गए। I answered this question last day already. I already answered this question. We can do something about this. Think about it. Then you will see. देखिए, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट साहब नए बने थे, तो मेरी क़यादत में, मेरी लीडरशिप में जम्मू में मीटिंग हो रही थी। इनकी रिसेप्शन कैसी हो, जनरल सेक्रेटरी साहबा हैं, इनकी रिसेप्शन अच्छी होनी चाहिए। लेकिन रात को हम मीडिया के जरिए सुनते हैं कि गुलाम नबी आजाद जी ने इस्तीफा दे दिया। हमारे से कोई इस बारे में शेयर नहीं हुआ था, हमसे कोई सलाह इस बारे में नहीं लेगी। देखिए, जहाँ तक पीरजादा साहब ने भी तफसीलन आपको बताया अपने स्पीच में, जो साथी स्टेज पे आज हमारे साथ बैठे हैं, अपने अपने एरिया में हर एक की पकड़ है, अपने लोगों में जो सारे साथी मजबूत हैं और उनके अगर अच्छी रैलीज होती थी तो लोग हम जमा करते थे। अगर इलेक्शन में लोग वोट डालते थे तो काम फील्ड में हम करते थे। तो इसलिए अगर कांग्रेस पार्टी का वर्कर मजबूत रहेगा, कांग्रेस मजबूत होके इलेक्शन में उभर के आएगी जम्मू कश्मीर के अंदर। ये किसी एक बंदे के जाने से या एक बंदे के रहने से पार्टी कमजोर नहीं पड़ जाएगी। इसकी बात तो अभी नहीं है, क्योंकि अभी भारत जोड़ो की यात्रा की हम तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए उसकी लीडरशिप उसके लिए नहीं तैयार। देखिए, हम
हम थोड़े छोटे वर्कर थे, वो बड़े लीडर हैं, वो अपना फैसला वो खुद ही ले सकते हैं, हम कौन होते हैं उनको गाइड करने वाले। लेकिन हमें लगा कि हम गलत रास्ते पे चल पड़े, हमें फिर से सही रास्ते पे वापस जाना चाहिए, वो हमने किया जो हमें अच्छा। Brother, we are on a positive note. Our today's press conference is to welcome our people. Certainly, it is a wider thinking all over the country. Everybody wants to fight against the divisive politics of BJP and those who are leaving Congress this time, this juncture, is not going to help in that. But those who want to unite India, those who want to fight against these forces, will definitely think about it. Yeah, you people are very much intelligent to judge all these things. You can have your judgment there. What is happening is in the public domain, totally in the public domain. I don't want to elaborate on these things. You judge yourself. देखिए, जब सेकुलर वोट 2-3-4 जगह डिवाइड होगा तो सेकुलर फोर्स, जो मेन सेकुलर फोर्स है जैसे कांग्रेस, वो कमजोर होगी, तो उसका फायदा तो नेचुरली किसी एक पार्टी को जाएगा।